یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. اتوار 9 نومبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. شام کے صدر احمد الشرع امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تاریخی ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے. پاکستان میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ، وفاقی آئینی عدالت اور ججز کے تبادلے. جانیے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں مزید کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی استثناء سے متعلق شک واپس لینے کی ہدایت. اور یہ بھی جانیے کہ بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں مصنوعی ذہانت کی خدمات کروڑوں انڈین شہریوں کو مفت کیوں فراہم کر رہی ہیں. اور 7 ماہ کی حاملہ خاتون پولیس اہلکار نے 145 کلو گرام وزن اٹھا کر تمغہ جیت لیا. اور یہ بھی جانیے کہ جگر کی پیوند کاری کیسے کی جاتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. شام کے صدر احمد الشرع وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں. احمد الشرع ایک اسلامی شدت پسند گروہ کے سابق رہنما تھے اور ان کے سر پر امریکہ نے $1 کروڑ کا انعام رکھا تھا. خیال کیا جا رہا ہے کہ احمد الشرع کی قیادت میں شام داعش کے خلاف امریکی اتحاد میں شامل ہونے جا رہا ہے. پیر کے روز ہونے والی ملاقات کے دوران شام اور امریکہ کے صدر برسوں کی خانہ جنگی کے بعد شام کی تعمیر نو پر بھی بات کریں گے. دوسری جانب احمد الشرع کی امریکہ آمد سے قبل شام کی وزارت داخلہ نے نام نہاد دولت اسلامیہ یعنی داعش کے ٹھکانوں پر حملوں کا اعلان کیا ہے. شام کی وزارت داخلہ کے مطابق سرکاری فوج نے ملک کے کئی صوبوں میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ داعش کے 61 ٹھکانوں پر چھاپوں کے نتیجے میں 70 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی قبضے میں لیا گیا ہے. اس سے قبل احمد الشرع اور ڈونلڈ ٹرمپ کی رواں سال مئی کے آخر میں ریاض میں ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے شامی صدر سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کو کہا تھا، جبکہ شام پر عائد امریکی پابندیاں ہٹانے کا وعدہ بھی کیا تھا. ٹرمپ اور احمد الشرع کی ملاقات کے بعد رواں سال جولائی میں واشنگٹن نے شدت پسند گروہ حیات تحریر الشام جو کہ پہلے القاعدہ سے وابستہ تھا کو دہشت گرد گروہ کی فہرست سے نکال دیا تھا. احمد الشرع کی واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے قبل امریکہ نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پیش کی، جس کے بعد سیکیورٹی کونسل نے شامی صدر پر عائد پابندیاں اٹھا لیں. یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس کی پیروی کرے گی. برطانوی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی احمد الشرع اور شام کے وزیر داخلہ انس خطاب کے خلاف پابندیاں اٹھا لے گی. احمد الشرع اور انس خطاب دونوں پر داعش اور القاعدہ نیٹ ورک سے وابستگی کے الزام پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں. احمد الشرع ایک زمانے میں حیات تحریر الشام گروپ کے رہنما تھے اور اس سے قبل وہ القاعدہ سے بھی وابستہ تھے. دوسری جانب انس خطاب النصرہ فرنٹ کے بانی اور رہنما تھے. اقوام متحدہ نے 2014 میں دونوں افراد پر پابندیاں عائد کی تھیں. احمد الشرع پہلے ابو محمد الجولانی کے نام سے جانے جاتے تھے. انہوں نے 11 ماہ قبل 8 دسمبر 2024 کو شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، جس کے بعد وہ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ بن گئے تھے. بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد نے نصف صدی سے زائد عرصے تک شام پر حکومت کی تھی. پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصے کے دوران شام کے نئے رہنماؤں نے خود کو اپنے شدت پسند ماضی سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، جس میں مسلح افواج سے متعلق آرٹیکل 243 میں تبدیلی، وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں سے متعلق اہم تجاویز شامل کی گئی ہیں.
तरमीमी मसवदे के तहत आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने और फील्ड मार्शल का रैंक ता हयात रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा। तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म करके ये इख्तियार नई वफाकी आइनी अदालत को दे दिया जाएगा। इसके अलावा सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है कि वो जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर हाई कोर्ट के जजेस के तबादले कर सकेंगे और अगर कोई जज तबादला कबूल ना करे तो उसे रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। अपोजिशन ने तरमीमी बिल की जल्दबाजी में पेशी पर एतराज़ किया है, जबकि कई माहिरीन का कहना है कि ये तरमीम अदलिया और मुसल्लह अफवाज के ढांचे में बड़ी तब्दीली लाएगी। ताहम ये मुसवदा पार्लिमान की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद ही आइन का हिस्सा बनेगा। मज़ीद तफसीलात हमारे साथी उमर दराज नंगियाना से। काफ़ी दिन की डिस्कशन के बाद फाइनली 27th अमेंडमेंट का बिल जो है वो सेनेट में पेश कर दिया गया है। आज सुबह कैबिनेट कमेटी जो थी उसने इसकी मंजूरी दी और उसकी सदारत वज़ीर आज़म ने बाकू से, जहाँ पे वो दौरे के लिए गए हुए हैं, वहाँ से लिंक के ज़रिए की और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसको सेनेट में पेश किया गया। सेनेट में पेश होने के बाद जो चेयरमैन सेनेट थे उन्होंने इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया, जहाँ पे कहा गया कि इसके ऊपर डिस्कशन होगी, जो इसके अंदर तमाम शिकें हैं उनके बारे में बातचीत होगी, तमाम पार्टीज़ उसमें हिस्सा लेंगी। तो लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं वो क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो हो ये रहा है कि जो तजावीज़ अब तक सामने आई हैं, जो सेनेट के अंदर पेश की गई हैं इस बिल के ज़रिए और फिर कमेटीज़ को रेफ़र की गई हैं, उन पर डिस्कशन होगी, उनमें ज़्यादा फोकस 3 चीज़ों के ऊपर है। पहली है फ़ौज की कमान के अंदर तब्दीली, यानी आर्टिकल 243 जो है उसमें अमेंडमेंट तजवीज़ की जा रही है। तो उसमें हो ये रहा है कि जो एक ओहदा पहले होता था तीनों अफवाज में कोऑर्डिनेशन के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह एक नया ओहदा बनाया जा रहा है जैसे जो कंकरेंटली आर्मी चीफ ही रन करेंगे और वो चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस होंगे। उसके बाद जो फील्ड मार्शल हैं उनका जो ओहदा है, उनका जो टाइटल है वो लाइफ टाइम कर दिया जा रहा है और उसमें ये होगा कि रिटायर होने के बाद जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनके पास ये ओहदा रहेगा और उसमें उनका जो रोल होगा वो एडवाइजरी होगा, यानी वो प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री मामलात के ऊपर एडवाइज़ करेंगे। लेकिन साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो उनके इख्तियारात होंगे उनका तयन वज़ीर आज़म करेंगे। दूसरी तब्दीली जो हमें देखने में मिल रही है वो जुडिशरी की साइड पे है, जिसमें कि 26वीं तरमीम के अंदर एक बेंचेस बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनका मकसद ये था कि जितनी भी आइनी दरख्वास्तें होंगी उनको वो निपटाएंगे। तो उसी चीज़ को अब इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है जो कि इन मामलात को देखेगी। इसके अंदर इस कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस होंगे और इस कोर्ट के अंदर जो चारों सूबे हैं उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसके चीफ जस्टिस अलहदा होंगे। जो तीसरी चीज़ इसमें हो रही है वो जजेस की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स जो हैं उनके हवाले से हो रही है। तो उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है जिसके अंदर दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस होंगे और फिर उसके बाद उनके एक सीनियर जज होंगे। और साथ ही जो एक चीज़ अहम रखी गई है वो ये है कि अब इन पोस्टिंग्स के अंदर जो बहुत अहम किरदार होगा वो वज़ीर आज़म और सदर को होगा। अब इसके बाद ये बिल कमेटीज़ में भेजा गया। नेशनल असम्बली और सेनेट की दोनों जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटियाँ हैं उनका मुश्तरका इजलास बुलाया गया है जिसमें कि ये बिल जो है इस पर डिस्कशन होगी और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर गौर करके उनके ऊपर इत्तफाक़ राय करके उसके बाद फिर इसको दोबारा हाउस में भेजा जाएगा। याद रखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके पास होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ मंजूर हो, उसके बाद ही वो आइन का हिस्सा बनती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आइनी तरमीम में शामिल वो मुजव्वज़ा शिक वापस लेने की हिदायत की है जिसमें वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ कि नून लीग के कुछ सेनेटर्स ने ये तरमीम जमा कराई थी, ताहम ये काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने कहा कि असूली तौर पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कानून और आवाम दोनों के सामने जवाबदेह रहना चाहिए। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने करोड़ों इंडियन शहरियों के लिए मसनूई ज़हानत यानी AI की खिदमात मुफ्त फराम करने का ऐलान किया है।
रवां हफ्ते से इंडियन सार्फिन को चैट जीपीटी के नए और कम कीमत वर्जन गो समेत कई एआई चैट बोट्स तक 1 साल तक बिला मुआवजा रसाई हासिल होगी। चैट जीपीटी के मालकान ओपन एआई की ये पेशकश हालिया हफ्तों में गूगल और परप्लेक्सिटी एआई के इसी नौयत के ऐलानात के बाद सामने आई है। दोनों कंपनियों ने इंडियन मोबाइल नेटवर्क्स के साथ शराकत दारी की है ताकि सार्फिन को अपनी एआई सर्विसेज तक 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक के लिए मुफ्त रसाई दी जा सके। परप्लेक्सिटी ने मुल्क की दूसरी बड़ी मोबाइल कंपनी एयरटेल के साथ शराकत की है, जबकि गूगल ने रिलायंस जियो के साथ इश्तराक किया है ताकि माहाना डाटा पैकेजेस के साथ मुफ्त या रियायती एआई टूल्स फराहम किए जा सकें। माहिरीन के मुताबिक इन कंपनियों की जानिब से की जाने वाली ये पेशकश महज सखावत नहीं बल्कि सोचे समझे सरमायाकारी के मंसूबे हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के तज्जियाकार तुरन पाठक का कहना है कि इन कंपनियों का मंसूबा ये है कि पहले इंडियन सार्फिन को जनरेटिव एआई का आदी बनाया जाए ताकि बाद में उनसे इसकी कीमत वसूल की जा सके। उनके मुताबिक इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी और बहुत बड़ी सारिफ मंडी मौजूद है। चीन अगरचे आबादी के लिहाज से इंडिया का मुकाबला कर सकता है, लेकिन वहाँ के सख्त रेगुलेटरी कवानीन गैर मुल्की कंपनियों के लिए बड़ी रुकावट हैं। इंडिया में तकरीबन 90 करोड़ मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस और 90 करोड़ से ज़ायद इंटरनेट सार्फिन मौजूद हैं। यहाँ का डाटा दुनिया में सबसे सस्ता समझा जाता है और ज़्यादातर सार्फिन की उम्र 24 साल से कम है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी कंपनियाँ इंडिया को अपनी एआई सर्विसेज के लिए एक बड़ा तिजारती और तरबियती मैदान समझती हैं। जितने ज़्यादा इंडियन सार्फिन इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, कंपनियों को उतना ही ज़्यादा बराह रास्त डाटा मिलेगा, जिससे उनके एआई मॉडल्स बेहतर होंगे। ताहम माहिरीन ने इस पेशकश से मुतल्लक डेटा प्राइवेसी और रेगुलेटरी निगरानी की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। भारत की वेट लिफ्टर सोनिका यादव ने 7 माह की हमला होने के बावजूद ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में 84 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीतकर सबको हैरान कर दिया है। उनकी ये शानदार कामयाबी न सिर्फ उनकी हिम्मत और अज़म की अलामत बन गई, बल्कि पूरे मुल्क में ख़वातीन की ताकत की मिसाल के तौर पर इसे सराहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल ने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पावर लिफ्टिंग के मुकाबले में कांसी का तमगा जीता है। सोनिका ने इस मुकाबले में उस वक्त हिस्सा लिया जब वो 7 माह की हामिला थी। बेसिकली मैंने अपने फिटनेस की जर्नी 2022 में शुरू की थी। तब मैं काफ़ी ओवरवेट थी और ओवरवेट होने की वजह से मुझे काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ की प्रॉब्लम थी, जिसको क्योर करने के लिए मैं जिम जाना शुरू किया। 2023 की जनवरी से हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं अब पावर लिफ्टिंग के गेम में पार्टिसिपेट किया करूँगी। सोनिका ने हमल का पता चलने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने मशवरा दिया था कि वो एहतियात के साथ ट्रेनिंग जारी रख सकती हैं। जो पहले कभी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग या फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, वो मुझे देख के अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वेट उठाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। शायद मैं भारत की पहली महिला हूँ, लेकिन मैं विश्व की पहली महिला नहीं। मैं थ्रू आउट द लाइफ एक स्पोर्ट्स वुमेन या एथलीट बन के रहना चाहूँगी। सामीन, जब जिगर अपनी कारकर्दगी खो बैठता है और इलाज से बेहतर नहीं होता तो मरीज़ को जिगर की पैवंदकारी की ज़रूरत पड़ती है। इस अमल में मरीज़ का ख़राब जिगर निकाल कर किसी सेहतमंद अतिया दहिंदा यानी डोनर के जिगर या उसके हिस्से से बदल दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक सेरोसिस जिगर का कैंसर, जिगर की नालियों में ख़राबी और शदीद जिगर की नाकामी वो बुनियादी वजूहात हैं जिनमें ट्रांसप्लांट नागुज़ीर हो जाता है। जिगर की पैवंदकारी 2 तरीक़ों से होती है, मुर्दा अतिया दहंदा से या जिंदा अतिया दहंदा से। आमतौर पर ख़ानदान के अफराद जैसे वालदैन, बहन, भाई या शरीक हयात अपना जिगर अतिया करते हैं। सर्जरी के बाद मरीज़ को मुदाफ़ियाती निज़ाम को काबू में रखने वाली दवाएं दी जाती हैं ताकि नया जिगर जिस्म में कबूल हो सके। डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादातर मरीज़ पैवंदकारी के बाद मामूल की सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, बशर्ते कि वह बाकायदगी से दवाएं लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहें।
اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. فلپائن میں سمندری طوفان فنگ وونگ کے خطرے کے پیش نظر 9 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. طوفان جس کا اتوار کی شام کو ساحل سے ٹکرانے کی توقع کی جا رہی ہے 185 کلومیٹر فی گھنٹہ اور 230 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ سپر ٹائفون میں تبدیل ہو گیا ہے. ملک کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ فلپائن کے سب سے زیادہ آبادی والے جزیرے لوزون کی طرف سے شمالی مغربی سمت میں بڑھنے والے طوفان کے ساتھ 3 میٹر سے زیادہ بلندی اختیار کرنے پر جان لیوا اور نقصان دہ طوفان کا خطرہ ہے. فنگ وونگ جو مقامی طور پر یوان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک پہلے آنے والے طوفان کل مائگی کے بعد آیا ہے، جس کی تباہی سے تقریباً 200 افراد ہلاک ہو گئے تھے. سچ وہ نہیں جو سب دکھاتے ہیں، سچ وہ ہے جو ZBC سیربین دکھاتا ہے. ملک بھر میں TLP کے خلاف سخت قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا. پاکستان اور افغانستان کے ساتھ لڑائی ہوا ہے، بس سارا ڈرائیور لوگ جو ہے نا گاڑی کے نیچے چھپا تھا. یہ کہانی لندن کی ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب ایک گودام میں ایک ڈبے سے شروع ہوئی. But like I'm not here to say, I want to defend myself or I have done. پچھلے 10 سالوں سے زگ زیگ نیوز وہ کہانیاں سامنے لایا جو عام میڈیا چھپاتا رہا. پاکستان کے یہ انتہائی دولت مند خاندان کون سے تھے، دولت کتنی تھی ان کے پاس. اب ہم لے کر آئے ہیں زگ زیگ نیوز پریمیم سبسکرپشن. صرف 500 روپے ماہانہ میں آپ کو ملے گا خصوصی مواد، گہرے تجزیے اور وہ حقیقتیں جو عام ناظرین نہیں دیکھ سکتے. بس فیس بھیجیں جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ پر، اسکرین شاٹ شیئر کریں اور ہم آپ کو بھیجیں گے پرائیویٹ ویڈیو لنک. زگ زیگ نیوز، جہاں خبر صرف سنائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے.